عمار سنو تو، یہ علی کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کے امور کی رسیدگی کر رہے ہیں، آمد و خرچ، موت و حوادثات، حیات و ولادت. یہ کنکریوں کی کیسی حکایت ہے؟ بہت سادہ حکایت ہے. وہ جو سفید کنکریاں ہیں فقیر رعایا ہیں، اور وہ کالی کنکریاں مختلف علاقوں کے مالدار لوگ ہیں. وہ جو کوزے میں ڈالا تھا ایک بیمار صحرا نشین کا تھا جو بیت المال سے زندگی گزار رہا تھا، اور وہ کل رات مرحوم ہو گیا. وہ جو تم نے ہٹا لیا تھا وہ کیا تھا؟ یہ دو جڑواں لڑکیاں ہیں جو کل صبح فاروق نامی شخص کے گھر ہوئیں، جو گھر گھر جا کر لوگوں کے برتن خلائی کرتا ہے. یا للنجاہ. وہ دو ہم ہیں. میں نہیں سمجھتا. ہو سکتا ہے کہ کوفہ اور بصرے کی حکومت علی ہمیں دے دیں. یہ لیجئے. قرمہ نہیں کھاؤ گے؟ نہیں. ہم ایسی چیز سے افطار کرنا چاہتے ہیں جس سے علی ہمیشہ افطار کرتے ہیں. تم وہ نہیں کھا سکتے. نہیں کھا سکتے؟ ہم ضرور کھائیں گے. آج رات ابوالحسن کھانے کے بجائے پیٹ پر اس پتھر کو باندھیں گے. ہم بھی پیٹ پر پتھر باندھ لیں گے. سمجھ جائیں گے کہ ہم ریا کر رہے ہیں. یہ چراغ کیوں بجھا دیا؟ نہیں معلوم. ہمیں حالات سے سمجھوتا کرنا چاہیے طلحہ. عمار سنو. عمار یاسر، ہم سن رسیدہ ہو چکے ہیں. اب اس وقت خلیفہ کے پاس ہم ضروری کام سے آئے ہیں. یہ دو چراغوں کی کیا حکایت ہے؟ پہلا چراغ بیت المال کے تیل سے جل رہا تھا جب ابوالحسن عوام کے کام میں مصروف تھے. اب جب کہ آپ جیسے صحابیوں سے بات کریں گے، حال و احوال ہوگا، تو اپنے گھر کا چراغ استعمال کریں گے. ہمارے اور کوفہ و بصرہ کی حکومت کے درمیان
کتنا فاصلہ دیکھ رہے ہو شیخ؟ سر سے سریا تک اس وقت احوال پرسی کر کے چلتے ہیں۔ حاجی آ گئے، حاجی آ گئے۔ تقبل اللہ اعمالکم حاجی۔ کیا قبول؟ کون سے اعمال؟ یہ کیا ڈھا دیا ہے شرع پیغمبر پر؟ تم منبع علم سے نزدیک تر ہو۔ میں کہاں نزدیک تر ہوں؟ دیکھ نہیں رہے سفر سے آ رہا ہوں؟ میری بھی تلاشی لو، شاید خلیفہ کو قتل کرنے والا کوئی ہتھیار نکل آئے۔ وہ بھی نکل آئے گا، جوش نہ کھاؤ، ذرا اپنے چچا زاد کے پاس تو جا کے دیکھو کہ کس طرح ریڑیوں پر حکومت کے عہدے بٹ رہے ہیں۔ تم بھی اپنے کپڑے میلے کر لو، کچھ مٹی سر و صورت پر مل لو تو تمہیں بھی مصر کی حکومت مل جائے گی۔ صاف صاف کیوں نہیں کہتے؟ تم سے درد دل کیا بیان کرنے لگا؟ گویا غفلت میں اپنے اصولوں کو بھول گیا، ادھر شیطان پر پتھر مارنے چلا گیا، جبکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں ہزاروں شیطان اربوں کے بھیس میں خلیفہ پر دن دہاڑے پتھر برسا رہے ہیں۔ یہودیوں کا قبرستان نہ ہوتا تو شاید خلیفہ کو اس کے گھر ہی میں دفنایا جاتا۔ ہم تو صرف تباہی کا مشاہدہ کر رہے تھے، اگر دخالت کرتے تو خلیفہ کے ساتھ ہم بھی مارے جاتے۔ آج کل جس کو بھی دیکھو یا شکایت کرتا ہے یا مشکوک ہے۔ زندگی میں بھی اکیلا رہا، مرا بھی تو بے یار و مددگار۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ تمہیں کس پہ شک ہے؟ کہہ دو ہمارے قبیلے والوں سے کہ خلیفہ کے قاتل انہی کے ساتھی ہیں۔ سب سے پہلا فرض مقتول خلیفہ کے جانشین پر اس کا قصاص لینا ہوگا۔ یہ بات ہے۔ ہم نے تو فقط اتمام حجت کی ہے۔ ذرا سنیں تو، تم لوگ کیوں اس نئی حکومت کا ساتھ دینے کے بجائے پیچھے ہٹتے ہو؟ ابو الحسن کا ساتھ کیوں نہیں دیتے تاکہ بگڑے ہوئے حالات کو سدھار سکے؟ اس مرگ و فریب کے شہر سے ذرا باہر تو نکلو اور ذرا جا کے تو دیکھو کتنے مفلس اور بے گھر لوگ آس لگائے بیٹھے ہیں تم جیسے مقدس صحابیوں سے مدد کی۔ ہم نے ہاتھ بڑھایا تھا ابن عباس، لیکن ابو الحسن نے ٹھکرا دیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ تنہا اس طوفان زدہ کشتی کو ساحل تک پہنچائیں۔ اس سے اچھی اور کیا بات ہے؟ حدود الہی کو ہم لوگ جاری کریں گے۔ خلیفہ کا خون حلال جان کر بہایا گیا ہے، ابو الحسن کو چاہیے کہ قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ دیکھ رہے ہو ان کی کارستانیاں؟ عائشہ نے مکے میں، طلحہ و زبیر مدینے میں، یقیناً شام میں معاویہ نے بھی خون عثمان کا بدلہ لینے کی ٹھان لی ہوگی۔ کاش ابو الحسن مصلحت سے کام لیں۔ حکومتی مشاکل کا آخری حل تلوار ہے۔ یا اللہ، طواف کعبہ قبول حاجی۔ تم ابھی تک زندہ ہو مغیرہ؟ زندہ تو ہوں مگر نہ ہونے کے برابر۔ جب منہ میں دانت اور بدن میں طاقت نہ رہے تو انسان چلتی پھرتی لاش ہے۔ تھکے تھکے اتنی جلدی کہاں جا رہے ہو؟ ابو الحسن کے دیدار کے لیے۔ خلیفہ مقتول کے گھر نہیں جانا ہوگا؟ زیادہ ضروری کام ہے۔ سب خیر ہے انشاءاللہ۔ ایک عرصے سے عربوں کی اجلت کو دیکھ کر گھبرانے لگتا ہوں۔ خدا نہ خواستہ کہیں پھر سے کوئی نئی آفت تو نہیں آنے والی؟ ام المومنین کی واویلا نہیں سنی؟ طلحہ و زبیر کی عہد شکنی نہیں دیکھی؟ 1,00,000 انبیاء آئے، کس نے حکم دیا اپنے آئے ہوئے خون کا قصاص طلب کریں؟
कौन सी आयत पर अमल करते हुए इंतकाम के लिए खड़े हुए? कोई दीन और ईमान है इनका? मैंने कहा था, अली से कहा था कि तदबीर के साथ आगे बढ़ें, मगर नहीं सुना। तला व जुबैर के मुंह को मनसब के साथ बंद किया जा सकता था। माविया अगर ऐसे ही चंद रोज हुकूमत कर लेता तो कौन सी आफत आ जाती। मैंने खुद अली को तदबीर और सियासत से काम लेने का मशवरा दिया, लेकिन अबुल हसन ने हमेशा की तरह सुना, मुस्कुराए और सर हिला दिया और बड़े इत्मीनान से कहा, या अदालत या गोशा नशीनी, और माविया को एक दिन के लिए भी उसके मकाम पर बाकी नहीं रखा। नहीं मालूम क्या बात है। आओ इब्ने अब्बास, हज कबूल हो। कब्बल अल्लाह। हम फकीर तो फर्जंदान काबा के तवाफ ही में खुश हैं। उमरा की माजूली का हुक्म है। ये तो तकर्रुरियां हैं। तो क्या मुआविया को भी माजूल कर दिया? पहला हुक्म माविया की माजूली का था। फैसला आदिलाना है अम्मार, दानिशमंदाना नहीं। हाजी, अपने चचाजाद को मसलहत और जाहिरदारी की नसीहत न करना। अल है अली मसलहत को किसी हक पर तरजीह दें। हुकूमत बगैर मसलहत अंदेशी की नहीं चल सकती है अम्मार। इलाही तुझी से उम्मीद है। तशरीफ रखिए। उस्मान इब्न हुनैफ, वाली बसरे। हकीम, क्या बसरे की हुकूमत तुम्हारा हक नहीं? उस्मान इब्न हुनैफ, या अपने हुनैफ, कहाँ है? तरद्दुद से काम मत लो उस्मान, आओ। निकलो उस्मान, जितना जल्दी हो बसरा रवाना हो जाओ। हौसला रखो उस्मान। उस्मान, तुम कांप क्यों रहे हो? ये अली की हुकूमत का हुक्मनामा है। मोहम्मद के खुदा की कसम, सिवाय अपनी गफलत के किसी भी चीज से नहीं डरता। क्या इस दार फानी में कोई ऐसी चीज भी है जिससे डरा जाए? मरहबा उस्मान, मरहबा, खुदा तुम्हारे साथ है। सहल इब्न हुनैफ, वाली शाम। लो सहल। अम्मार, माले गनीमत की तकसीम की बजाय हमारा ख्याल करो। शहर में हर जगह शोर हो गया है कि खलीफा के कत्ल करने वाले हम बलवाई हैं। हम लोग कब तक इस शहर में अजनबियों की तरह डर डर कर फिरते रहें और छुपते रहें? हम कब तक मुहाफिजों की निगरानी में सोएंगे? अबुल हसन इस तरह हमसे क्या सौदा करना चाहते हैं? अली सौदा करने वालों में से नहीं, उन्हें ताजिर समझा है।
जिसने भी नाहक खून बहाया है उससे खिसास लिया जाएगा। खलीफा का खून बहाने नहीं आए थे, फिर ये शोर शराबा क्या है? तो फिर ये तोहमत मैं अपने सर ले लूं? तुम इब्न अबू बकर खलीफा मकतूल की ज़ौजा नाइला की गवाही के मुताबिक तुम हादसे के दिन हमला आवरों के साथ वहां थे। मैंने सुना है कि सबसे पहले खलीफा तक पहुंचकर उनकी दाढ़ी पकड़ने वाले भी तुम ही थे। खलीफा ने तुम्हारे कान में क्या कहा था कि जिसकी वजह से तुम लरज उठे और उनका दिफा करने लगे? नहीं मालूम। नाइला की गवाही के मुताबिक वो तुम हो जो हमलावरों के साथ लड़े थे। यकीनन तुमने उनके चेहरे देखे होंगे। अब बताओ वो कौन थे जिन्होंने खलीफा तक पहुंचकर उनको कत्ल कर डाला? कातिलीन खलीफा की निशानदही करो ताकि सबके मुंह बंद हो जाएं। खलीफा का कातिल मैं हूं। जिसे भी खलीफा के खून का इंतकाम लेना है उठाए तीर और मेरे सीने को छलनी कर दे। उठाओ तलवार, मैं हाजिर हूं। खुदा की कसम, जो लोग जख्म पे नमक छिड़क कर गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं और मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, उनका मकसद सिर्फ दुश्मनी अली है। वो लोग जो अरब के रेगिस्तान में शीश महलों के ख्वाब देख रहे हैं और नादारों के पड़ोस में मुरग्गन गजाएं और बकरे भून भून के खा रहे हैं, ये सारे मौका परस्त लोग दुश्मन अली हैं। मेरी बहन आयशा तलहा को खलीफा देखना चाहती थी। तलहा और जुबैर हुकूमत कूफा और बसरा के ख्वाब देख रहे थे जो ताबीर न पा सके। किसके एतराज से डर रहे हो तुम? हम और तुम जैसे अफराद ऐसे मौका परस्त लोगों के लिए कीड़े मकोड़ों की तरह हैं जिन्हें जब चाहे कुचलते हैं। ये लोग जो खलीफा मकतूल का झूठा सोग मना रहे हैं वो खलीफा आदिल की कमर तोड़ना चाहते हैं। अली के लिए कमर शिकन मसाइल क्या कम है जो तुम भी अपनी जाहिलाना चुनो चिरा से उनका जिगर खून कर रहे हो। खलीफा का कातिल अरब की न दिखने वाली जाहिलियत है जो कि शायद शैतान की उम्र लेके आई है। इब्ने उदैस, गली कुचों में फिरते हुए लोगों में नफरत की बीज बोने के बजाय उजड़े हुए सहरा में जाओ, गंदुम और जौ के बीज बो, फूलो फलो। जजीरतुल अरब को जिंदगी की जरूरत है, मौत की नहीं। ठीक है, हम जाके गंदुम बोएंगे। مرحبا جناب، مرحبا، جزاكم الله خيرا. उमारत इब्न शाब वाली कूफा। उमारत इब्न शाब गायब हैं। मैंने देखा था वो खेत में हल चला रहे थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत में वालियों के इंतखाब का मयार ज़ाती सलाहियतों पर मुश्तमिल था और किसी को ख़ानदानी असर व नफूज़ और क़बाइल व माशरती हैसियत के मुताबिक वाली नहीं बनाया गया। पैगम्बर इस्लाम के बहुत से दूर और नज़दीक के असहाब और तलहा व ज़ुबैर जैसे लोगों के नज़दीक जो ख़ुद को खिलाफत का मुस्तहक़ समझते थे, ये मयार काबिल तहम्मुल न था।
कितनी बार कहूं कि मैं तेरा बाप हूं। अली उमर, अली। क्या अली? अली को मार डाला? नहीं। अरे बोलता क्यों नहीं? साफ साफ बता तो। अली ने तुम्हें वाली कूफा बना दिया है। वाली कूफा? ये किससे सुना है बेटा? अम्मू अम्मा से। मस्जिद में वो लिपटा कागज पढ़कर सुना रहे थे। उस्मान ने मेरा कान खींचते हुए कहा, जल्दी खबर बाबा तक पहुंचा दो। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि तेरे बाबा वाली कूफा मुकर्रर किए गए हैं। मैंने पूछा कि ये क्या होता है, तो उन्होंने जवाब दिया, अमीर बेटा अमीर। अब मेरे लिए जर्द रंग के चमड़े वाले जूते खरीदेंगे बाबा? नहीं, नहीं खरीदेंगे। अमीर दादा कभी पावर रहना देखा है? अली की हुकूमत में तुम मौजूदे देखोगे मेरी जान। कभी नंगे पैर अमीर को भी देखा है? कम से कम सुई तो देते जाएं, पैर से कांटा तो निकाल लूं। अगर तेरे लिए मैं चमड़े के जूते खरीदूं तो जरूर तेरी बहन भी अपने लिए गले का हार मांगेगी। वो रास्ता कूफा जाता है, हमें बसरा जाना है। हाँ अम्मार, अबुल हसन ने इराक की दो आरास्ता बहनों कूफे और बसरे के लिए हम दो पाप रहना शोहरों को भेजा है। इन दोनों शहरों की दिलरुबा फसलें हज़रत आदम और हव्वा की आजमाइशी गंदुम की तरह हैं। अगर तुमने ज़रा सी भी खा ली तो याद रखो, विलायत अली की बहिश से निकल जाओगे मोमिन। अपनी आंखें और दिल संभाल कर रखो। हम दोनों अबुल हसन की कलाइयों की तरह हैं। जिस तरह घोड़ा अपने सवार को पहचानता है, ये फित्तीन कूफे और बसरे वाले भी अपने वालियों को समझते हैं। अगर देखो आला कीमती लिबास, उम्दा नालैन और मुरक्कन ग़िज़ाएं तुम्हें पेश की जाएं, तो जान लो कि तुम्हें काबू करना चाहते हैं। लगाम हाथ से छूटने न पाए मोमिन। जिस दिन से अबुल हसन ने ये मनसब मुझे सौंपा है, न नींद आती है न भूख लगती है। ये मुअम्मा मेरी समझ में नहीं आता। कैसा मुअम्मा? यही कि तलहा और ज़ुबैर के होते हुए अली ने हम जैसों का इंतखाब क्यों किया, जो उमरा से बिल्कुल शबाहत नहीं रखते। हमने तो अपनी सवारी भी पड़ोसियों से कर्ज ली है, तो क्या इन हालात में लोग हमारी सुनेंगे? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। खुदा की कसम, अली खुद कुरान नातिक हैं, वो बेहतर जानते हैं। खुदा हाफिज इब्न शहाब। खुदा हाफिज बरादर। फी अमानिल्लाह बूढ़े सरदार। इन सफेद बालों को न देखो, दिल मेरा जवान है। दिल इश्क से जवान रहता है हकीम। दिल में क्या रखते हो? इश्क अली मोमिन। यही तो हमारे लिए सआदत है। काश मालिक के अश्तर भी साथ आए होते। मालिक ही ने तो कूफे की राह हमवार की। अगर मैंने अपने उमूर को बखूबी अंजाम न दिया तो अबुल हसन पर बोझ बन जाऊंगा। फी अमानिल्लाह।
कहाँ जा रहे हो? अगर खुदा ने चाहा तो कूफा उफा क्या करने जा रहे हैं? विलायत के लिए। विलायत या तिजारत? इस हुलिये से तुम्हें क्या लगता हूँ, ताजर या वाली? कौन? तुम अमीरों के नौकर लगते हो। तो हमारे रास्ते से हट जाओ। जरूर। सामान खाली करो इसका। कहाँ हाकिम हो? कपड़े बदल लिए ताकि पहचाने ना जाए। तलाशी लो इनकी। लाओ माल निकालो निकालो। ये तो कुछ नहीं, पीतल है। पूरा पीतल तो नहीं, हमारी पहुंच यहीं तक है। लोहे और पीतल के सिवा इनके पास कुछ भी नहीं है। ऊँट ले जाएंगे इनके। ऊँट पड़ोसी की अमानत है, जान दे दूंगा, लेकिन अमानत में खयानत नहीं होने दूंगा। तो जैसा अमीर नहीं देखा। चलो। अरे भाई रुक जाओ, चोरी क्यों करते हो? छोड़ो इस काम को, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा पेट भर दूंगा। किस्मत देखो हमारी, तू वाकई अमीर है या पागल? कूफा चलो, वहां तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा। सलामुन अलैकुम जमीअन। जबान तो नहीं रखते, इशारे से मस्जिद का रास्ता ही बता दो। रुक जाओ शेख। जाओ तुम मदीने वापस चले जाओ और अली से कह दो कि कूफे वाले अबू मूसा अशअरी की बैत करते हैं। अगर मैं भूला नहीं हूँ तो तुम वही पैगंबर असदी तो नहीं हो? क्या तुम वही अजूबा नहीं जिसने खुदा की तखलीद करते हुए अपनी जानिब से कुरान लिख डाल? क्या हुआ, खुदा ने कोई नया पैगंबर तो नहीं भेजा जो तुम इस तरह हसादत कर रहे हो? इब्ने खुइल, मैं और मेरे साथी जो बराबर अखलास के मुरीद हैं, मोजज़े के तौर पर कुछ तो दिखाओ ताकि हम सब तुम्हारी राह पर ईमान लाएं। चलो पानी का कूजा ही सही, या रोटी और खजूर हो, फटा हुआ टाट ले लो, या दरख्त का साया ही सही, कुछ नहीं तो सलाम का जवाब ही दे दो। क्या ऐसा नहीं है? तुम तो फसाहत और बलागत के अंदाज से वाकिफ हो, तानों से मुझे रुसवा नहीं कर सकते। मेरी आयात का मौजज़ा वही जानते हैं जो शेरो अदबो हिकमत से आशना हो। मेरी जबान तुम नहीं समझोगे, बद्दू अरब की जबान शमशीर होती है। लौट जाओ वरना तुम्हारे सर को कलम करके कूफियों की जानिब से अली को तोहफे में रवाना कर दिया जाएगा। अगर अरब की ज़बान को पानी से तशबीह दें तो 40 पत्थर की चक्कियों को भी घुमा देगी। ए बंदे खुदा, इस लावारिस दुनिया में हर एक
अपने दिल और अक्ल का पैगंबर है। जुंदब, इस पैगंबर को तुम समझाओ। मेरे अगर टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएं तो मौला के हुक्म को पुष्ट नहीं दिखाऊंगा। वापस चले जाओ, खुदा के वास्ते चले जाओ। मैं जितना नसीहत कर सकता था कर चुका। ये लोग नसीहत नहीं समझते, सिर्फ तलवार की जबान जानते हैं। अली से कहो कि हुक्म दें, फिर देखना कूफे में बेटा बाप पर तलवार उठाएगा। रास्ता दो, अबू मूसा आ रहे हैं। अलैकुम अस्सलाम। यमना शाह, तुम अली से कह दो कि कूफे वालों की बैत मैं खुद ले लूंगा। अबुल हसन की बैत के तालिब हो तो मेरा रास्ता क्यों रोकते हो अशरी? देख लो, ये है हुक्म अली, उनकी मोहर भी लगी है। देखो, ओ अरब, तुम क्यों नाराज होते हो मोमिन? कूफे वालों ने मुझे जबरदस्ती रिदाए रियासत पहना दिया है। मैं तो इस बुढ़ापे में अपनी आखिरत संवार रहा हूं। मुझे दुनियावी मुआमिलात और रियासत से कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर ये लोग सुनने वालों में से होते तो जरूर मेरा पीछा छोड़ देते। उनके साथ तो मुझे पिदराना गुफ्तगू करनी पड़ती है। जब तक इन्हें वादा न करो ये अपना मुंह भी नहीं धोते। अली से कहो कि कूफे की निस्बत परेशान न हो। फकत चंद रोज अबू मूसा को मोहलत दें। जब कूफियों की बैत हासिल कर लूं तो जिसको चाहे रवाना कर दें। हम तो सरतापा अली के इताअत गुजार हैं। ओ शरी, हम लोग क्या नामहरम है जो तुम औरतों की तरह ये क्या चुपके से खुसुर फुसुर कर रहे हो? ऊंची आवाज में कहो ताकि सब सुने। मुआमिला कर रहे हो या मुजादिला? हर दो सूरत में तुम्हारा कोई दखल नहीं है अबा खुताम। चाहे मुआमिला करूं या मुजादिला, जान लो कि जीत मेरी होगी। तुम तो अभी अभी उस बेफायदा और मुश्किल आवर जंग से लौट आए हो। दुनिया को तुम अपनी नजर से देख रहे हो। तुम्हारा मुफाद उसी में है कि तुम लोगों से दूर रहो। अगर इस बरादर अरब के साथी खलीफा मख्तूल के कातिलों की तलाश में हूं तो तब क्या करोगे? कोई सबूत है तुम्हारे पास कि तुम बेगुनाह हो? हाथ न लगाओ। खबरदार अगर दोबारा लड़े। चलो खाओ। तुम नहीं खाओगे? चलो तुम खा लो। तू क्यों नहीं खा रही है बख्तुन नस्र? वादा किया है तो वफा करो।
मोमिन तो अपने कौल का सच्चा होता है, आखिर कब तक तुम मेरे साथ ऐसे टाल मटोल करते रहोगे? बाप का खोया हुआ विरसा मांग रहे हो? ठीक है, मैंने तुमसे वादा किया है, जिस तरह खुदा एक है मेरी जबान भी एक है। तुमने अगर खलीफा को कत्ल किया है तो खलीफा के कातिल को क्यों तलाश कर रहे हैं? तुम साबित करो कि तुमने मारा है, फिर मैं नामर्द हूं अगर खुताम का हाथ तुम्हारे हाथ में न दूं। कैसे साबित करूं? मुझसे पूछ रहे हो? नामुमकिन शर्त इंसाफ नहीं है मोमिन। काश के खुताम का महल मेरा खून करार देते तो मैं अपनी जिम्मेदारी को खूब समझता। खलीफा का कातिल या उसका जानशीन हो या कम से कम किसी इलाके का अमीर। वरदान। जी बानो। आशिक अपने माशूक के सामने मुनकसिर होते हैं और मगमूम भी। खलीफा को तुमने मारा है? नहीं बानो, नहीं। क्यों? डर गया था। किस बात से डर गए थे? डर गया था कि कातिल खलीफा को मार दिया जाएगा। देख रही हूं कि अभी तक खुद को नहीं भुलाया है। जाओ वरदान, शायद मुस्तकबिल बईद में तकदीर हमें एक दूसरे से मिला दे। मेरी जिंदगी को बेआसरा न छोड़ो बानो। जाओ वरदान, मेरे बारे में सोचो। अब आप क्या सोच रही हैं? उस फसाद के बारे में जो जल्द ही होने वाला है। सचमुच उस फसाद का जिम्मेदार कौन है? सबके जहन में यही सवाल खटक रहा है कि खलीफा को किसने कत्ल किया। उम्मुल मोमिनीन मक्के में यही सवाल पूछती हैं। तला और जुबैर मदीने में अली को कसूरवार ठहराते हैं, और शाम में माविया किसको सोच रहा है वो खुदा ही जानता है। अबा यजीद, लश्कर शाम के होते हुए खलीफा का पेट फाड़ के मार दिया गया। अगर जंग का हुक्म दिया होता तो अमीर शाम के गिरिया उजारी की नौबत न आती। मुझे आपके चचाजाद भाई के खून भरे पैरहान के बजाय हिजाज से आपकी बैयत की खबर लानी चाहिए थी। रात इतना गहरा है कि 100 लश्कर बद्र को भी निगल सकता है। जरूरत चाराजोई की है। पहले तदबीर फिर शमशीर है। क्या समझते हो, लोग किसकी बैयत करेंगे? खलीफा के कत्ल के बाद हिजाज वाले ऐसे हाथों के तलाश में थे जो खून खलीफा से आलूदा ना हो। लिहाजा वो अली के हाथ थे जिन्होंने खलीफा का दिफा किया। तो अली अब खलीफा है। तुम चालाक और होशियार सरदार हो, यकीन करते हो कि बलवाई अली की जुल्फ़िकार का मुकाबला कर सकते हैं। अली ही ने महसरा तोड़कर
प्यासे खलीफा तक पानी भी पहुंचाया। सितारे आजकल हमारी किस्मत के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। खून खाही के लिए तो खून बहाया जाता है। इस बूढ़े और नातवान आदमी का खून बहाया गया है कि जिस पर लकड़ी और पत्थर की आंखें भी गिरिया कर रही हैं। अलम बनाओ उसका, हर जगह, हर मिंबर पर, कुछ वो बाजार में लेकर जाओ। आज के बाद यही सुर्ख और सफेद कमीज हमारे लश्कर का अलम होगा। मर्सिया खानी बर्पा करो। नौमान। जी अमीर। सुनो, फौरन फलस्तीन कासिद रवाना करो और अम्र आस को पैगाम दो कि अगर उसके हाथ में पानी का कासा भी हो तो रख दे और फौरन शाम पहुंचे।